Students, welcome back. Today we are going to start with a new topic, that is mode. Now let's understand what is the meaning. The value which gets repeated maximum number of times or the value occurring with maximum frequency in the given data is known as mode. तो मोड वो वैल्यू है, वो ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. We will understand it clearly when we will do the solution of the practical questions. It is denoted by MO. That is the symbol of mode. Mode को denote करते हैं MO से. और you can understand M0 और MO. Now calculation of mode, we know there are the two type of distribution. One is ungrouped data and second is the grouped data. Raw data, it is known as ungrouped data, and in grouped data two type of distribution is there. One is discrete frequency distribution and second is continuous frequency distribution. Second, continuous frequency distribution. Is it clear? So we will start from the raw data in which only observations are given, जिसमें सिर्फ observations दे के रखे होते हैं. So let's start with the illustration 29. The number of books purchased by each of 15 peons from a bookstore are as follows. 15 peons हैं, उन्होंने कितनी बुक्स परचेज की वो यहाँ पे दे के रखा हुआ है. एक ने 0, एक ने 1 भी नहीं, एक ने 2. इन दिस वे ऑब्जर्वेशंस आर गिवन. फाइंड आउट द मॉडल वैल्यू. तो मॉडल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर हम ऑब्जर्व करें तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है. यू कैन ऑब्जर्व हियर 2 2, हियर ऑल्सो 2 2 2 2 2. सो 2 इज रिपीटिंग हाउ मेनी टाइम्स? 7 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7. तो मैक्सिमम 7 टाइम्स रिपीट हो रही है 2. देयरफॉर MO इज 2. मोड की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई. इट्स वेरी सिंपल. नाउ इलस्ट्रेशन 30. दिस इज डिस्क्रीट सीरीज. इट इज ग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट सीरीज है. इन डिस्क्रीट सीरीज वी हैव टू ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी कॉलम. फ्रीक्वेंसी 45. दिस इज द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी. ये क्या आ गई? ये हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी आ गई. So highest frequency is 45. अब 45 के सामने जो xi है, this is x and this is f. अब इसके सामने जो x है, that is 2, that will be mode. So mode is 2. Highest frequency, उसके सामने जो x होगी वो mode हो जाएगी. Now come to the next, that is illustration 31. Again you have to find out the मॉडल नंबर ऑफ ट्रिप्स. इसमें भी दिस इज x एंड दिस इज f. इफ़ यू ऑब्जर्व हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 7. इट इज़ रिपीटिंग 2 टाइम्स. तो 7 के सामने one वैल्यू इज 2 एंड सेकेंड वैल्यू इज 5. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव 2 मोड. one is 2 and second is 5. This type of questions, they are known as having bimodal data. ये जो डेटा है ये बाईमॉडल डेटा हो गया, जिसमें सच डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड बाईमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें 2 मोड होते हैं. 32. अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द मोड. दिस आर दी ऑब्जर्वेशंस. इट इज़ अनग्रुप डेटा. तो इसमें अगर देखें तो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है. नो वैल्यू इज रिपीटिंग. सो देर इज नो मोड इन दिस question. Mode of number of patients cannot be found. So it means there is no mode in this question. Now the topic is continuous frequency distribution. In continuous frequency distribution, we must be having the classes in this way, class and frequency. तो class और frequency होगी
and we have got two formulas for finding out mode. One is FM formula, this is the formula mode. FM formula L plus Fm minus F1 divided by 2Fm minus F1 minus F2 into C, where L stands for the lower boundary point of the model class, Fm means frequency of the model class, F1 means frequency of the class prior to model class के ऊपर की frequency, and F2 means model class के बाद की frequency, and C stands for the class length. This we will understand as, इसे हम FM formula के हिसाब से याद रखेंगे. Is it clear? तो one is FM formula and second is empirical formula of mode. For continuous frequency distribution we have got two formulas. One is FM formula and second one is empirical formula for mode. Now empirical formula for mode is, this is the formula 3m minus 2 x bar. So whatever I am explaining you have to write it in your notebook, then only do the sums. This is 3m minus 2x bar, it is empirical formula. M stands for median and x bar stands for mean. Now the question arises, when we are going to apply these formulas, हमें FM formula कब apply करना है and empirical formula कब apply करना है. So these are the conditions you have to understand carefully. सबसे पहले हमें FM formula के लिए ही जाना है. We have to go for the FM formula by observing the class and frequency. Understand it carefully. सबसे पहले FM formula के लिए ही जाना है. अगर क्लासेस की क्लास लेंथ इक्वल है, अगर क्लासेस की क्लास लेंथ इक्वल है, देन वी आर गोइंग टू अप्लाई FM formula ओनली. हम क्या करेंगे उसमें FM formula ही अप्लाई करेंगे. इज इट क्लियर? लेकिन अगर क्लासेस की क्लास लेंथ अनइक्वल है तो हम इम्पेरिकल फार्मूला अप्लाई करेंगे. इज इट क्लियर? तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि FM फार्मूला कब अप्लाई करना है. फर्स्ट कंडीशन, क्लासेस की क्लास लेंथ इक्वल होनी चाहिए. सेकंड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही बार होनी चाहिए. थर्ड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट और लास्ट क्लास में नहीं होना चाहिए. फोर्थ, क्लासेस मिक्स नहीं होनी चाहिए. मिक्स्ड मीन्स डिस्क्रीट और आधी कंटिन्यूस, ऐसी नहीं होनी चाहिए. अगर ये सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं देन ओनली वी कैन अप्लाई FM फार्मूला. इज इट क्लियर? तो FM फार्मूला अप्लाई करना है तो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए जो मैंने बताया अभी. अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है देन ओनली यू हैव टू गो फॉर द एम्पेरिकल फार्मूला. तो पहले तो FM फार्मूले के लिए ही देखना है. अगर वो अप्लाई नहीं होता है देन यू हैव टू अप्लाई द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ मोड. इज इट क्लियर? सी फर्स्ट कंडीशन, मोर देन वन ऑब्जर्वेशन इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अपीयर्स विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. अगर एक से ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा बार आ रही है तो एम्पेरिकल फार्मूला अप्लाई करना है. कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लासेस ऑफ अनइक्वल लेंथ. अगर क्लासेस अनइक्वल है तो एम्पेरिकल फार्मूला अप्लाई करना है. द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन, आधा डिस्क्रीट एंड द रेस्ट इज कंटिन्यूस. अगर मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन है देन यू हैव टू गो फॉर द एम्पेरिकल फार्मूला. दिस 3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट. क्लासेस की क्लास लेंथ अगर अनइक्वल है देन एम्पेरिकल फार्मूला. अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा बार है तो एम्पेरिकल फार्मूला, और अगर मिक्स्ड क्लास है तो एम्पेरिकल फार्मूला, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर फर्स्ट या लास्ट क्लास में है तो एम्पेरिकल फार्मूला. लेकिन अगर सभी कंडीशंस, क्लास लेंथ इक्वल है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही बार है, फर्स्ट और लास्ट क्लास में नहीं है, मिक्स क्लास नहीं है, तो FM फार्मूला ही अप्लाई करना है. वहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला नहीं अप्लाई करना है. इज इट क्लियर? Now how to solve the sums by applying FM formula and empirical formula, that we are going to understand in the next video. Thank you.